Coming in, ladies and gentlemen, we'll shortly be joined by Mr. Abhay Agarwal. He's the founder of a very well-known PMS. Abhay ji, what a pleasure to have you on this wonderful day. A very warm welcome, and I am sure all your existing PMS shareholders are absolutely delighted with the performance that you've put up. Congratulations for that. And what do you think of the market today? No, thank you, Shalenji. And first of all, congratulations to you also. The way you have been keeping your investors and your viewers guided throughout this, volatility over the last month I have seen, and I must compliment you that you have guided them so correctly and not letting them panic. And as a result of that, all your viewers will be benefiting today from that. So our view, Shailendra, has been like yours only, where we have said that investors need to keep their faith, behave like long-term investors, not look at this as a trading market or a trading opportunity, but to stay invested in high-quality stocks that will benefit disproportionately from India's upcoming economic growth, over the next 5 and 10 years. And if you take that kind of view, Shailendra, we have seen that the perspective changes and investors are far more comfortable. So I think what is happening in the market today, Shailendra, I believe that this is not euphoria yet. It is just a technical adjustment of under allocation plus short positions that is playing out. I think it will continue to play out for maybe a day or so more. But then a strong base will form, and then investors will have to decide where to allocate their capital from there on. So I'm not looking at this as a euphoric market at all. I think this market has long legs to go if you look beyond just 6 months and 1 year. And I think this is a great opportunity for investors to make sure that they are appropriately allocated to equity stocks that are benefiting. They'll have to do the research, they'll have to do the work. But this is not a market that people should book profit and exit the market. This is a market that they should stay invested in, is my suggestion to investors, Shailendra. अभय जी, यही कारण है कि आपको आमंत्रित किया गया है. आपकी सोच और आपकी समझ बहुत मजबूत है और जो राय आप देते हैं वो सरलता से भरपूर है. अब बताइए, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? देखने को तो लगता है कि 700 अंक ऊपर है बाजार. एक नया हाई हमको आता हुआ दिख ही रहा है, ऑब्वियसली है ही बाजार में. ना सिर्फ निफ्टी, अनेक ऐसे इंडिसेस हैं जो अब उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हैं. यहाँ पर अगर पैसा डालना हो, और आप डालेंगे ही क्योंकि अनेक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अब फेंस पर जो बैठे हुए थे वो बाजार में आएंगे, तो कहाँ डालना चाहिए पैसा? जी, हर मार्केट में जो बुल मार्केट होता है उसमें भी ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो बेरिश जोन में होते हैं. तो हमारा ध्यान हमेशा चैलेंज वहां रहता है जहां पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अभी नहीं है, पर हम एक ऐसी व्यू बना सकते हैं कि अब ये सेक्टर चलेंगे. तो एक सेक्टर जो उसमें सबसे बड़ा हमको समझ में आ रहा है वो है नॉन फेरस मेटल्स का, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे काफी समय से स्टॉक्स ने रैली नहीं देखी है. पर अब जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, निकल, जिंक, सिल्वर, इस तरह के जो मेटल्स के ग्लोबल प्राइसेस रैली कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कंपनीज हैं जैसे हिंडाल्को, वो काफी डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट करेंगी. काफी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर है, और ये मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है इसको रिसेंटली. तो एक हिंडाल्को हमें अच्छा लगता है नॉन फेरस मेटल्स के लिए. दूसरा जो हमने एडिशन किया है वो है ग्रासिम. अगेन बड़ी थीम उसमें है सीमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स प्लस प्राइवेट कैपेक्स पिक होगा, डेफिनेटली होगा, और उसके लिए सीमेंट जो कि एक काफी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है उसको पूरा फायदा होगा. और ग्रासिम के एक तो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, दूसरा उसमें मल्टीपल अदर बिजनेसेस हैं, जैसे पेंट्स है नया जो उन्होंने लॉन्च किया है, और उसके साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज, फैशन सब है. तो एक ये दो हमने रिसेंट एडिशंस की है. तीसरा जो एक सेगमेंट है मुझे लगता है केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स का, जो चाइना की डंपिंग की वजह से काफी डिप्रेस था, अब उसमें जान वापस आ रही है क्योंकि चाइना का डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो डंपिंग काफी कम हुई है, इंडियन कंपनीज की प्राइसिंग पावर वापस आई है. तो उसमें थोड़े समय पहले हमने यूपीएल ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में. ये सारी थोड़ी कॉन्ट्रा बेट्स लगेंगी शैलेंद्र जी, पर मेरा मार्केट में मैंने यही देखा है कि यूफोरिक स्टॉक से थोड़ा अलग रहे, और जो अच्छी चीज है जो नहीं चली है, इन्वेस्टर्स नहीं देख रहे, उस पर ध्यान दें, तो डेफिनेटली पैसा बनता है.
तो उसी अप्रोच के साथ ये सेक्टर्स देख रहे हैं यशन। अच्छा, इसमें बखूबी आपको अग्रवाल साहब बता रहे हैं कि अच्छा पैसा चाहे कम समय में चाहे लंबी अवधि में आपको कैसा बनता हुआ दिखेगा, उस तरफ फोकस कीजिए जहां पर बाजार की नज़र नहीं है, और वहां पर जो आपको सेक्टोरल टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है, जैसे केमिकल और एग्रोकेमिकल स्पेस से यूपीएल, और जहां पर सरकारी टेलविंड है और ग्लोबल टेलविंड है। सरकारी टेलविंड आपको दिखेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ग्रासिम सीमेंट की वजह से, और हिंडाल्को एक ग्लोबल रैली वहाँ पर आप अवतरित होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हिंडाल्को का एक यूनिट नोवेलिस जिसने आईपीओ के लिए फाइल किया है, लगभग $1.2 बिलियन आपको हिंडाल्को के खाते में आता हुआ दिखेगा। अभय जी, ये बताइए, जिस हिसाब से आज हमने ब्लो आउट देखा है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, अनेक 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 लोगों को एक फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है, जो कि अब बाजार में और मजबूत होती हुई दिख रही है। उनके लिए आप क्या राय देंगे सर? देखिए, मैं यही कहूंगा कि आप अगर लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं, अगर आप सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पर आपका विजन है कि मैं इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अगले 3 साल 5 साल 10 साल, उसको बैक करूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज क्या हो रहा है और या कल क्या होगा। मतलब हो सकता है आपको लगे कि मैं 3-5% ज्यादा में ले रहा हूं स्टॉक, पर अगर आपको कन्विक्शन है कि आप अच्छी चीज ले रहे हैं जो आपको रिटर्न बना के देगी, तो कोई भी समय बुरा नहीं है। मतलब मैंने तो यही देखा है, जब मैंने काम करना शुरू किया था तब निफ्टी 700-800 के लेवल पे होता था, 95 की बात कर रहा हूँ शैलेन जी, और आज वही निफ्टी 24,000 के आसपास आ गया, 23,000-24,000 के आसपास आ गया। तो मैंने देखा है कि अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे और ज्यादा टिंकरिंग ना करें पोर्टफोलियो में, और अगर कोई अंडर एलोकेटेड है या पूरा बाहर से मार्केट बैठा है, तो वो ये अब इंतजार ना करे कि बड़ा शार्प करेक्शन आएगा तो तब ले लेंगे, नहीं तो क्या आप मिस ही करते रहेंगे अपॉर्चुनिटीज को। आपको कहीं ना कहीं तो कन्विक्शन रखनी पड़ेगी और अच्छे स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। तो मेरी राय यही है शैलेश जी कि लंबे समय का सोचे, और 1-2 दिन में क्या हो रहा है उसकी वजह से आपको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है उसके बारे में ना सोचे, मतलब मार्केट से बाहर ना बैठे, ये मेरी एडवाइस है जी। अभय जी, क्योंकि हम एक ऐसे इवेंट पर बैठे हुए हैं जहां पर ऑलरेडी 650 अंक बाजार उच्चतम लेवल पे पहुंच ही गया है, और कल आज से बड़ा धमाका होने की उम्मीद है जब एक्चुअल डेटा आएगा वोटिंग का। आपको क्या लगता है कि कल भी बाजार इसी धमाके के साथ बढ़ेगा, या जो इवेंट जिसका इंतजार बेसब्री से था और जो कि हमारे सामने फिलहाल है, ये अब संपूर्ण हुआ? जी, मुझे लगता है अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि जो आज की हम रैली या स्पाइक देख रहे हैं वो इस बेसिस पे है कि जो एग्जिट पोल्स थे वो सारे कंसिस्टेंटली एनडीए को एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दे रहे हैं। एक पहले डर था कि हो सकता है एग्जिट पोल्स कंक्लूसिव ना हो, मतलब वो क्लियर डायरेक्शन ना दे, कोई कहे 260 सीट, कोई कहे 360 सीट, पर अब एक मार्केट ने एक ये देखा है कि ये तो सारे ही एक क्लियर डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आज की जो रैली है वो उसकी रैली है। अभी जो कन्विक्शन की, हाँ, ये एग्जिट पोल्स के बाद जो असली नंबर आएंगे वो भी यही आएंगे, वो उसकी रैली कल होगी। तो मुझे लगता है कि इस मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग भी करे, कोई सेलिंग भी करे, वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी शैलेश जी। ये मार्केट में अभी बहुत पैसा है जो बाहर बैठा हुआ था, जो अभी भी अंदर आएगा। शॉर्ट पोजीशंस अभी भी है, कटी नहीं है पूरी। लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद कल एक मौका मिले हमें, मार्केट गिर जाए तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ये फीलिंग रहेगी तब तक ये मार्केट यहां से करेक्ट नहीं होगा और ऊपर ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरी रैली जो है ये अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई रिवर्सल आएगा। मुझे लगता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है मार्केट का, 22,050, 22,500, 23,000 के बीच में। आप अभय जी, जैसे जैसे आप कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही बाजार में होता हुआ दिख रहा है। लगभग आधा घंटा बाजार खुलने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिखी, और वो लाजमी थी, क्योंकि जिन लोगों ने ज़बरदस्त ख़रीदारी करी थी पिछले 5 या 6 दिन गिरावट में, उनका मुनाफा वसूल करना था। और उसके बाद अब देखिए अनेक ऐसे स्टॉक्स हैं जो दिन के मध्यम से जो निचले लेवल था अब ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको एफएनओ में बताता हूँ, अब स्टॉक 10% से ऊपर बढ़ रहे हैं। पहला फिल्टर 10 का होता है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड, दोनों में 11-11% की वृद्धि।
RECL में अब 10% से ज़्यादा की वृद्धि, और अदानी समूह का तो क्या ही कहिए, यहाँ पर ज़बरदस्त मोमेंटम है। अभय जी, क्या ये मोमेंटम चेजिंग हो रही है या क्या ये एक्चुअल निवेश हो रहा है? आपकी क्या राय है? इसमें दोनों ही चीजें हो रही है। इसमें मैं नहीं कहूंगा कि एक ही चीज हो रही है, मिक्स है दोनों का। एक तो है हमारे जो काफी सूझबूझ वाले इन्वेस्टर जो ये सोच रहे हैं कि देखिए ये स्टॉक्स अभी भी महंगे नहीं है अगर हम इन पे लॉन्ग टर्म व्यू लें, पर अगर कोई देखे कि हाँ ये पिछले साल भर में क्या हुआ है तो ये काफी उस हिसाब से महंगे लगेंगे। पर मुझे लगता है अभी भी जिस तरह से सरकार का क्लियर डायरेक्शन है स्पेंडिंग का, उस हिसाब से कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट जायज है। पर जो यूफोरिक एक सेंटीमेंट है, फ्रॉथ, वो भी थोड़ा बिल्ड हो रहा है, तो ट्रेडर्स का भी इंटरेस्ट आता है, मोमेंटम ट्रेडर्स का भी आता है। और मोमेंटम को एक्सप्लेन करना शैलेंद्र जी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको एनालाइज करना या उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो डेफिनेटली एक यूफोरिया भी है, एक मोमेंटम चेजिंग भी है, और थोड़ी जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। ये सब चीजें मिली हुई है मुझे लगता है इन स्टॉक्स में, क्योंकि इन स्टॉक्स की कोर अर्निंग्स है। ये न्यू इकोनॉमी स्टॉक जैसे नहीं है कि सिर्फ हवा में ही चल रहे हैं कि कभी 10 साल बाद अर्निंग्स आएगी तब ये जस्टिफाई लगेगा वैल्यूएशन। अभी भी ये स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, जिसमें अभी भी मुझे लगता है वैल्यूएशन जूस है अभी इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो ये राय हमारे साथ आती हुई अभय जी की। साक्षी जी भी जुड़ गई हैं, उनके भी कुछ प्रश्न हैं अभय जी आपके लिए। ओवर टू यू साक्षी। ऑल राइट अभय जी, गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से बिजनेस टुडे बाजार पर और बिजनेस टुडे टीवी पर। आज दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ हम लाइव जा रहे हैं, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आपकी राय जान पाए। तो सबसे पहले तो बहुत सारे सवाल हम श्योर शैल जी ने आपके ऊपर रखे, लेकिन कुछ एक सवाल मेरे पास भी हैं। पहला तो मैं जानना चाहती हूँ ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस के लिहाज से, FIIs के लिहाज से, जब अभी लीडिंग अप टू द लोकसभा इलेक्शंस वी हैव सीन कि बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है FIIs की तरफ से, और एक तरीके की टिप्पणी बन रही थी कि सेल इंडिया बाय चाइना। अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? आज जो उम्मीदें हैं कि शॉर्ट कवरिंग हुई होगी, जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पर वो बैठे हुए होंगे, अब एक बार फिर से पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात हो रही है। अब रुझान कैसा रहेगा FIIs की तरफ से? क्या वहां से भी बाजार को अब सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा? जी साक्षी, गुड मॉर्निंग। देखिए, FPIs का नेगेटिव व्यू इंडिया पे नहीं था। मैं ये नहीं मानूंगा कि वो नेगेटिव थे इंडिया पे या बेच रहे थे। अभी उनका बहुत बड़ा निवेश है इंडिया में, ऑलमोस्ट $100 बिलियन का, और वो अपनी पोजीशन हेज कर रहे थे शॉर्टिंग के थ्रू। जो उनके शॉर्ट पोजीशन थी वो एक तरह का हेज था कि अगर इतना बड़ा इवेंट उनके फेवर में नहीं गया तो उसके हिसाब से हेजिंग की स्ट्रैटेजी थी। थोड़ी एक्स्ट्रा हेजिंग हो गई थी क्योंकि नर्वसनेस बढ़ी थी काफी लास्ट फ्राइडे आते आते, और अब वो हेज पोजीशंस रिवर्स होंगी, थोड़ी कैश मार्केट में बाइंग होगी, और जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होंगे। काफी कवर मुझे लगता है ऑलरेडी हो गए हैं। दूसरा, जो चाइना में पैसा जाएगा इंडिया से निकल के, वो भी मुझे नहीं लगता साक्षी ठीक है, बिकॉज ये दोनों बहुत ही अलग मार्केट है और ग्लोबल फंड्स की सेपरेट एलोकेशन होते हैं इन मार्केट्स के लिए। तो और फंड्स के पास इतना पैसा है कि उनको इंडिया से निकाल के चाइना में डालने की जरूरत नहीं है। जो चाइना में जो पैसा जा रहा है, जैसे आज भी हमने देखा हैंगसेंग ऊपर है ऑलमोस्ट 3% और इंडिया भी आप है 3%, तो दोनों मार्केट ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह से पैसा निकल के दूसरी जगह जा रहा है। मुझे लग रहा है FPIs दोनों जगह पैसा डाल रहे हैं अभी। तो जो FPIs का कॉशियस स्टैंस था इंडिया के तरफ, अब वो डेफिनेटली चेंज होगा। जो उन्होंने बाय लिस्ट बनाई थी अपनी, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट करने लगेंगे। सब तैयार थे लेने के लिए। मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था अलग अलग चैनल्स में कि सारे FPIs की बाय लिस्ट रेडी है, वो वेट कर रहे हैं एक इवेंट की, और वो लगता है मुझे कल भी वेट करेंगे एक्चुअल पोल रिजल्ट की बिफोर प्रेसिंग द ट्रिगर। और इसी के लिए मुझे लगता है कि इस मार्केट में अभी भी काफी लाइफ है यहाँ से। ओके, अभय जी को धन्यवाद करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ साक्षी। वैसे तो समझिए कि जून चल रहा है, लेकिन लगता है दिवाली जल्दी आ गई है। और अभय जी, ये आप ही बता पाएंगे। मैं एक दो और हमारी जो मित्र मंडली है PMS की दुनिया में बात कर रहा था, कुछ क्या पैसे आप जैसे महानुभावों के पास वीकेंड पर भी आए एग्जिट पोल में? वो जो इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे थे एक डेफिनेटिव डायरेक्शन का, क्या उन्होंने पैसे भेजे सैटरडे संडे को? नहीं, सैटरडे संडे को नहीं आए शैल जी, आज सुबह से आना शुरू हुए हैं और हमारे लिए भी थोड़ी दिक्कत बढ़ गई है
और वो मैं सुबह उठा, मैंने फोन पे देखा मैसेजेस व्हाट्सएप पे वही सारे लाइन थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काफी अभी भी पैसा बाहर है मार्केट में जो आना है बाकी, काफी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने कैश एलोकेशन 10% 20% तक बढ़ा दिया था। तो वो सब आएगा, कहाँ जाएगा शैलेंद्र जी? मतलब इंडिया जैसी कंट्री में अगर आप इक्विटी को नहीं बैक करेंगे तो क्या करेंगे? डेट लेंगे, फिक्स्ड इनकम में, फिक्स्ड डिपॉजिट में डालेंगे, उसमें कौन क्या रिटर्न बनाएगा? सोना लेंगे या नहीं लेंगे ये बताइए, क्योंकि सोना भी तो तेजी में चल रहा है और यहाँ पर अब निवेश करना है या नहीं? सोना नहीं, बिल्कुल। आई थिंक एक मैंने तो देखा हमारे जितने इन्वेस्टर हैं, और मैं खुद की भी बात करूं, कोई किसी के पास कमी नहीं है सोने की ऑलरेडी फिजिकल गोल्ड की, पर अब सब कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिजिकल से डीमैट करके या कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया जाए। तो डेफिनेटली एज एन एसेट एलोकेशन हर पोर्टफोलियो में जगह है सोने की। जी, तो अभय जी, हमारी तरफ की एक कहावत है कि 10 के 10 उंगलियां घी में और साथ ही साथ सर कढ़ाई में। तो ये इस वक्त हाल है हमारे पीएमएस फंड मैनेजर्स का। इतना पैसा आता हुआ, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले 6 महीने, साल भर, 5 साल के लिए। भयंकर पैसा बनने की उम्मीद है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इंडिसेस को भी आउट परफॉर्म करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। दिल्ली में कभी आइए तो मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू साक्षी। ऑल राइट।